Hello, students of 8th standards. Today, as you know, our chapter number 5 is going on, and name of chapter is algebraic expressions. So we completed of exercise 5a question up to 6th. Now today we'll discuss question number 7. What is in this question? Here find the sum of the given polynomials, and the second part is the difference of the given polynomials, or especially they said second from first, means we have to find the difference. How there we have to what to do कि सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि सेकंड को हमने फर्स्ट से माइनस करना है. ठीक है, क्या करना है हमने डिफरेंस कैसे निकालना है? सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है. ठीक है, तो बेटा हियर आर 6 पार्ट्स. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आई एक्सप्लेन टू यू. तो बोथ टॉपिक्स आर हियर. Or then how can we add or how can we subtract? There are two methods, column method and row method. Column and row. Column already we discussed in question number 5 and 6. This is a column. Means in the same column we write the but their little factors, same terms, like as x y, x square y हो तो x square y के नीचे x square y लिखेंगे, x y है तो x y के नीचे x y लिखेंगे, like this. So then we can apply in these 6 parts any method, but you should be perfect in both. Okay, see, so no, see the first part we have to solve this first part. ठीक है, for 2 parts, that is of one we have to find the sum, one we have to find the difference. So no, okay, I am going to explain the first part. First part, what is there? Minus 5x plus 9, and second is 2x plus 3. Two polynomials are given. We have to add these or we have to find the difference of these. So no, see here, first part, A part जो है इसका, तो हमने सम फाइंड आउट करने हैं ऑफ द पॉलिनोमियल्स. ये हमारे पॉलिनोमियल्स हैं और ये शोन टू यू. तो नो, आई एम गोइंग टू अरेंज दिस इन द कॉलम मेथड. तो हियर माइनस 5x कॉलम में क्या है, सेम टर्म लिखनी है, तो दैट इज नेक्स्ट वन, 2x will come from the second, and then plus 9 in this constant term and plus 3 in the second polynomial is a constant term. So now here column method, so we are going to add sum. Find करना means we are going to add there. So in addition never we change the sign of any term. तो there minus 5x plus 2x, यानी कि 2x will remain same as it और प्लस 3 आल्सो विल रिमेन सेम एज इट. इसमें कोई माइनस का नहीं बनेगा, ना ये माइनस का बनेगा ना जी माइनस का बनेगा. Now here we have the one negative and one positive term. So what we have to do, हमें क्या करना होता है, when we have the one negative and positive always we have to find the difference, यानी कि हमें उसको माइनस करना होता है बट साइन ऑफ ग्रेटर. तो हमने पहले माइनस कर दिया, 5 minus 2 क्या हो गया, 3 हो गया. देन साइन विल कम ऑफ द ग्रेटर नंबर, और ग्रेटर नंबर क्या है हमारे पास 5, 5 के साथ क्या है माइनस, दैट्स वाई हियर विल कम minus 3x. और दीज आर बोथ पॉजिटिव्स. If the we have the terms both are negative numbers, both are positive terms, we कह सकते हैं here numbers are, no here 9 plus 3 but will come 12. So like this column method, this is a column method to solve as a addition sum. ठीक है, for the algebraic expressions. No, row method में क्या करते हैं हम, row method here written mentioned both methods I applied. One this is column method I applied, here I am going to apply row method. So row method what we will do in this one, फर्स्ट वी राइट द फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देन सेकंड ब्रैकेट्स में डाल के मैंने दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख दिए, माइनस 5x प्लस 9, और हमें सम फाइंड करना है, दैट्स दिस सम, बल्कि दिया प्लस का साइन आ गया हमारे पास, और सेकंड पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास 2x प्लस 3. नो ओपन द ब्रैकेट, माइनस 5x प्लस 9, इफ देयर आउटसाइड इज हियर तो सेम विल कम, फर्स्ट जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो सेम ही आ जाएगी आपकी, बट सेकेंड में क्या है कि जब तो हमने माइनस करा तब साइन चेंज होते हैं, पर यहाँ पे क्या हमें करना, प्लस. प्लस के लिए कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, जैसे अंदर है साइन वैसे के वैसे ही रह जाएंगे. यानी कि 2x प्लस का है तो प्लस की रहेगी, 3 पॉजिटिव है तो 3 भी पॉजिटिव का ही रहेगा. नो, वी हैव टू कलेक्ट द लाइक टर्म्स. ठीक है, लाइक टर्म्स वी हैव टू टेक हियर, दैट इज माइनस 5x प्लस 2x प्लस 9 प्लस 3. यानी कि दीज आर टू लाइक टर्म्स, यू कैन पुट इन ब्रैकेट्स आल्सो इवन, जैसे हमने यहाँ ब्रैकेट डाल दी, और देन कांस्टेंट टर्म्स आल्सो यू कैन राइट इन ब्रैकेट. नो, हियर सी अगेन वन नेगेटिव वन पॉजिटिव, वी हैव टू व्हाट डू, सब्ट्रैक्ट करने हैं, साइन ऑफ ग्रेटर आना है, यानी कि 5 में से 2 गए 3 आ गया, साइन कौन सा है ना 5 वाला, देखो ऊपर भी हमने ऐसे किया, माइनस 3x हियर आल्सो माइनस 3x, और these are both positives, so 9 plus 3 is 12. So like this in both cases by applying any method, मीन्स चाहे आप कॉलम करो चाहे रो करोगे, देन यू विल गेट द सेम आंसर. ये था हमारा ए पार्ट. फर्स्ट पार्ट के लिए जो है इन्होंने पूछा हुआ था कि फाइंड द सम.
नो हाउ टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ दिस, जो कि सेकंड पार्ट आई शोन टू यू, दिस आर डिफरेंस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट। तो हियर आई शोन हियर दिस थिंग। पहले हमारा टॉपिक आ गया डिफरेंस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। दिस एट सेकंड को माइनस करना है फर्स्ट में से, तो मैंने इसको सिंपल लिख दिया फर्स्ट माइनस सेकंड। तो प्लीज ये पॉइंट आपने ध्यान से नोट करने हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो योर आंसर विल बी रॉन्ग। तो मतलब कि फर्स्ट में से सेकंड को ही माइनस करना है। कई बार बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते कि सेकंड फ्रॉम फर्स्ट का क्या मीनिंग है, ठीक है। दैट्स वे रिटन इन सिंपल वे, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखिए -5x + 9 माइनस देन हियर 2x + 3 इन ब्रैकेट आई कैप्ट हियर। मतलब कि हम इसमें क्या लगाने चाह रहे हैं, रो मेथड लगा रही हूँ मैं इसमें फिर से, ठीक है, रो मेथड। तो हियर व्हाट विल बी देयर इन एडिशन सम आई टोल्ड टू यू कि जब तो हम जहाँ पे प्लस होते हैं हमारे पास तो हमारे सेम साइन आ जाते हैं, बट इफ देयर इज अ माइनस द साइन विल बी चेंज्ड, बट फर्स्ट विल रिमेन सेम। फर्स्ट पॉलिनोमियल की जो भी टर्म्स है जिस साइन के साथ है वैसे की वैसे रह जाएंगी, यानी कि -5x + 9 एज इट विल रिमेन। बट हियर सी 2x इज पॉजिटिव, 3 इज आल्सो पॉजिटिव, both will become negative, यानी कि -2x - 3। तो सेम एज addition sum means firstly open the bracket, but here sign change of the second polynomial. Now like terms we have to check together, -5x - 2x in one bracket you will keep these, and then plus 9 - 3 here. Then both are negatives, it means we have to add, but sign will come कॉमन। कॉमन कौन सा साइन है दोनों के साथ, माइनस का है, तो ये कॉमन हो गया। और 5 + 2 कितने होते हैं 7, दैट्स वी -7x + -7x here will come, और देन here वो नेगेटिव, 3 इज नेगेटिव, 9 इज पॉजिटिव, दैट्स वी 9 - 3 इज 6, तो आंसर इज -7x + 6। तो ये था हमारा रो मेथड टू सॉल्व। तो वंस आई वांट टू शो टू यू कॉलम मेथड आल्सो फॉर द सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन, ठीक है जी। इसके लिए हम कॉलम मेथड भी आपको दिखा देते हैं। -5x + 9 और सेकेंड इज 2x + 3। यही कारण है कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो। अब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना यानी कि सेकंड की जो भी टर्म्स है उनके साइन चेंज होने, इट मीन्स अब यहाँ पे अलग से रो में तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐसे सेटिंग आ जाती है टर्म्स की, बट इन दिस स्पेशली इन सेपरेट लाइन वी हैव टू शो। अगर जहाँ पे हमारे पास प्लस है तो माइनस का साइन आएगा, माइनस है तो प्लस का आएगा, बट हियर बोथ टर्म्स आर विद पॉजिटिव साइन, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, इट मीन्स ये आ गया हमारे पास यहाँ पे माइनस। नो व्हाट हैपन, अब ये 2x जो है किसके बन गए, माइनस के, नोट ऑफ प्लस, ये प्लस के नहीं रहे, मीन्स -5 - 2 बट विल कम -7x, और देन दिस व्हाट विल कम, यहाँ पे हमारे पास क्या है 9 पॉजिटिव है, 3 क्या है हमारे पास नेगेटिव है, यानी कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, हमें क्या करना है माइनस ही करना है, बट साइन ऑफ ग्रेटर क्या है हमारे पास 9 के साथ क्या है प्लस, तो 9 - 3 बट विल कम 6। तो ये आंसर आ गया हमारे, ठीक है, कॉलम मेथड से। रो मेथड से भी इतने हैं -7x + 6, ये रो मेथड है हमारा, ठीक है। वंस आई विल राइट फॉर यू टू फाइंड द डिफरेंस रो मेथड और दिस इज अ कॉलम मेथड, ठीक है, दिस स्पेशली कॉलम मेथड फॉर विच पर्पज, टू फाइंड द डिफरेंस। तो लाइक दिस फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट, ओके जी। अभी देखते हैं इसका सेकंड पार्ट जो है आप बेटा खुद ही कर सकते हो, सिंपल सेम एज द फर्स्ट, बट यहाँ ध्यान रखना है कि क्यू के नीचे क्यू की टर्म लिखनी है, पी के नीचे पी की लिखनी है, प्लीज़ ध्यान से करना है आपने। ये है हमारे पास पार्ट इसका सेकंड, ये आपने खुद करना है, और थर्ड पार्ट भी आपने अपने आप ही करना है, ठीक है जी। थर्ड पार्ट जी है y⁴ -9 एंड सेकेंड पॉलिनोमियल है y⁴ + 3, सेम एज फर्स्ट पार्ट अगेन। तो आप मतलब कि दोनों मेथड अप्लाई करके इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कॉलम मेथड भी लगाएंगे रो मेथड भी लगाएंगे, जिससे आप दोनों में परफेक्ट हो जाए। नो वी हैव टू डिस्कस द फोर्थ पार्ट, हियर आर 3 टर्म्स, नथिंग हैपन, देन वी हैव टू फॉलो द रूल्स इंस्ट्रक्शंस वट एवर इज गिवन। तो नो फोर्थ पार्ट में क्या हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है 5m² + 3m + 8, और सेकेंड पॉलिनोमियल में क्या है हमारे पास 6m² + 2m + 10, 2 पॉलिनोमियल्स हैं, इनको हमने ऐड भी करना है और इनको सब्ट्रैक्ट भी करना है। नो हियर सम आई एम गोइंग टू सॉल्व बाय अप्लाइंग दैट कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में आपको पता है कि दैट सेम टर्म्स, पहले जैसे हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल तो एज इट लिख लेना 5m² + 3m + 8, देन सेकेंड में ध्यान से ऑब्जर्व करना है, यह तो गिवन इन द ऑलरेडी इन ऑर्डर, बट इफ दे आर नॉट इन द ऑर्डर वी हैव टू एडजस्ट आवरसेल्फ, तो हमें इसको अरेंज करना है ऑर्डर में।
तो नो व्हाट इज देयर हियर एम स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमने एम स्क्वायर लिख किया, ठीक है, 5m स्क्वायर, हियर विल कम 6m square in this column, and next is 3m, here we have in this 2m, so we have to write in the same column. Next term is 8, here is a 10, we have to arrange means all in this way, ठीक है, in a proper columns. कॉलम का मतलब आपके जो है लिटिल फैक्टर्स जो है, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं एम स्क्वायर एम एन एम जो भी हो हमारे पास, उनकी टर्म्स जो है सेम कॉलम में हमें अरेंज करनी है. तो नो what is here, both are positive, we have to add, that's why what will come, 5 plus 6 11m square plus 3 plus 2 5 will come. m बल्कि लिटिल फैक्टर विल रिमेन सेम, m स्क्वायर m रहेगा, सिर्फ हमने नंबर्स को देखना है, प्लस का माइनस का उसके अकॉर्डिंग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना, प्लस 5m और देन दीज आर आल्सो बोथ पॉजिटिव, तो प्लस 8 प्लस 10 बट विल कम प्लस 18. तो ये मैंने कॉलम मेथड से आपके लिए सॉल्व कर दिया, ठीक है. ये था आपका इसका फाइंड द सम ऑफ दिस. नो डिफरेंस इज आल्सो देयर, डिफरेंस में पहले बता दिया आपको कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, ठीक है जी, फर्स्ट पॉलिनोमियल्स में से सेकंड को माइनस करना है. तो व्हाट इज हियर, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज 5m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 8 और सेकंड पॉलिनोमियल इज 6m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 10. दिस इज अ पॉलिनोमियल अरेंज्ड ऑलरेडी दैट इन द कॉलम सेम एज एडिशन सम, वैसे अरेंज किया जैसे इसमें किया था, देखो ध्यान से, जैसे सेम हियर वी अरेंज्ड, बट हियर नथिंग वी डिड, कोई हमने कुछ चेंज नहीं किया, बट हियर वी आर गोइंग टू मेक द चेंज. हो दीजिए, ये 6 किसके हैं प्लस के, तो ये बन जाएंगे माइनस के, ये 2 किसके हैं प्लस के, ये भी बन जाएंगे माइनस के, 10 किसके हैं प्लस के, ये भी बन जाएंगे माइनस के, यानी कि तीनों टर्म्स ही इसकी नेगेटिव हो गई. आप 5 एंड 6, 5 इज पॉजिटिव 6 इज नेगेटिव, हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है. तो मीन्स अब देख लीजिए 6 में से 5, ज़्यादातर हम ऐसे ही सोचते हैं, करना तो ऐसे ही है, 6 में से 5 की 1 आ जाएंगे, बट किसके आएंगे नेगेटिव साइन के, बिकॉज 6 इज ग्रेटर. तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास माइनस एम स्क्वायर. नेक्स्ट इज प्लस 3m प्लस 2m, अब ये 2m किसका बन गया, माइनस का हो गया. तो क्या हुआ, m तो m आए गई, बट 3 माइनस 2 इनको क्या करना है हमने, यानी कि माइनस करना, यानी कि 3 माइनस 2 इज 1, दैट्स वाई 1, नो नीड टू राइट, इफ यू वांट टू राइट फॉर योर कन्वीनियंस यू कैन राइट, अदरवाइज नो नीड. इस m का मतलब ही ऐसा है कि ये 1m है हमारे पास. नेक्स्ट अगेन 8 इज पॉजिटिव 10 इज नेगेटिव, एक नेगेटिव पॉजिटिव हमें क्या करना होता है, माइनस ही करना होता है, बट साइन ऑफ ग्रेटर. तो यहाँ पे 10 ग्रेटर है, 10 किसके माइनस के, तो माइनस का साइन आ गया, और 10 और 8 का डिफरेंस कितने का है, 2 का. तो लाइक दिस वी गॉट द आंसर ऑफ दिस माइनस एम स्क्वायर प्लस m माइनस 2, आंसर विल कम ऑफ दिस. ठीक है, ये था हमारा फोर्थ पार्ट बेटा. इसके हैं टोटल 6 पार्ट, तो फिफ्थ तो हम आपके लिए छोड़ देंगे. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर. प्लीज डोंट लीव एनी साइन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है. डोंट बॉदर, यू हैव टू अरेंज इन द कॉलम्स और देन यू हैव टू सॉल्व. ठीक है, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर की टर्म लिखो, एक्स वाई सेम कॉलम में लिखने हैं, वाई स्क्वायर सेम कॉलम में लिखने हैं. ठीक है. नो नेक्स्ट वन मोर आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू 6 पार्ट. दिस इज लास्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. 3m स्क्वायर माइनस 5n प्लस 5mn प्लस 7n स्क्वायर, और सेकेंड पॉलिनोमियल है 2mn माइनस 5n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर. विच ईयर ऑर्डर इज चेंज, तो ऑर्डर आपने बल्कि क्या करना है, ध्यान से नोट कर लेना पहले, फिर लिखना है उसको कॉलम में अच्छे से. ठीक है. नो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फॉर द सम दिस एक्सप्रेशन दिस पॉलिनोमियल्स. देखो पहले ये तो सेम ही लिख लेना, हमने सारा क्वेश्चन लिख लिया. नो फ्रॉम द सेकेंड, पहली हमारी टर्म है जहाँ पे m स्क्वायर, तो हियर आल्सो वी हैव टू टेक m स्क्वायर. m स्क्वायर क्या है हमारे पास, लास्ट वाली टर्म है माइनस m स्क्वायर, तो सी हियर आई रिटन माइनस m स्क्वायर. नेक्स्ट mn वाली टर्म है जहाँ पे क्या है, ये प्लस के हैं, प्लस के तो प्लस लिखिए, प्लस 2mn, क्योंकि यहाँ पे सिंबल कोई नहीं लिखा हुआ, कोई ऑपरेशन ही इन्होंने शो किया, बट इट मीन्स दिस इज ए पॉजिटिव साइन, तो प्लस 2mn हियर विल कम. और देन लास्ट टर्म इज प्लस n स्क्वायर, तो माइनस यहाँ पे क्या है माइनस 5n स्क्वायर, क्योंकि ये तो m स्क्वायर जो पहले रेंज कर लिया, ये रह गया हमारे पास माइनस 5n स्क्वायर. अब एडिशन करनी है, एडिशन के लिए कोई साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव पॉजिटिव करना, माइनस यहाँ से कितना है हमारे पास 1 है, और 3 में से 1 गया 2 आ गया हमारे पास, किसके आने प्लस के, क्योंकि 3 इज अ ग्रेटर, तो 2m स्क्वायर बन गया माइनस 5mn प्लस 2, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर हमें माइनस करना है, 5 में से 2 गए 3, साइन ऑफ 5 विल यानी कि माइनस 3mn, और प्लस 7n स्क्वायर माइनस 5n स्क्वायर, और ये क्या पॉजिटिव नेगेटिव हमें माइनस करना है, बट साइन ऑफ ग्रेटर, 7 किसके हैं प्लस के, तो ये आ गया 2n स्क्वायर. ये था हमारा सम इसका. इसका बी पार्ट जो है दैट इज़ फॉर टू फाइंड द डिफरेंस. डिफरेंस के लिए भी हमने जैसे ही अरेंज किया हुआ सारा वैसे ही कर लिया, देख लीजिए ध्यान से.
और मैंने बताया कि साइन चेंज हो जाते हैं। पहला साइन किसका था, माइनस का, ये बन गया प्लस का। किसके लिए, डिफरेंस के लिए, प्लीज़ ध्यान करिएगा। और सेकंड पॉलिनोमियल के ही साइन चेंज होंगे। जी किसका है, प्लस का, ये कितना बन गया, किसका बन गया, माइनस का। जी -5 है और ये बन गया अब प्लस के। फिर से वही चीज़, ये दोनों पॉजिटिव है, ऐड करने हैं, 4m² बन गया। ये दोनों नेगेटिव है, ऐड करने हैं, बट साइन ऑफ नेगेटिव विल कम। 5 to 7 हो गया 7mn। और देन यार बोथ आर पॉजिटिव, तो 7 + 5 is 12n²। तो लाइक दिस दैट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल कंप्लीटेड बेटा। तो ये था आपका इस चैप्टर का पार्ट 6। ठीक है, यानी कि जो वीडियो बना रहे हैं हम, ये 6 वीडियो भेजे हैं हम आपको। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में 7th में देंगे हम आपको सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। तो प्लीज़ देखो बेटा जी, टाइम इज़ गोइंग सो वे फ्रॉम अस, मीन्स जो ये सेशन है 2021 का, इसमें हमने 2020 तो सारा ही घर पे बिता लिया। नो देख, तो ठीक है, आप अगली के लिए सोचिए, फॉर द 2021 के लिए सोचना है आपको। उसके लिए आपको अच्छे अच्छे से तैयार होना है कि हमें स्ट्रॉन्ग टर्मिड बनना है, मीन्स कि हमें अब जो है पढ़ना शुरू करना है। मे बी योर क्लासेज विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दैट 15 Jan, but this is not sure, but just only we listen the news about it. To get ready and happy new year to all of you. Thanks, Vita.